નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. લાંબુ લચક ગરમીના રેકોર્ડ બ્રેક પારા વચ્ચે આખરે 7 તબક્કાનું મતદાન લોકસભા ચૂંટણી માટે પૂર્ણ થયું અને 4 જૂને નક્કી થશે કે કોણ દિલ્હીની ગાદીએ બેસશે. પરંતુ દર વખતે પરંપરા હોય છે, અલગ અલગ એજન્સી એક્ઝિટ પોલ કરતી હોય છે. અમુક મર્યાદાઓના કારણે, નિયમોના કારણે જ્યારે ચૂંટણી પૂર્ણ થાય ત્યારે એક્ઝિટ પોલ ટીવી સ્ક્રીન પર આવે છે અને 6 વાગ્યાથી આવશે. આજે 7મા તબક્કાનું મતદાન હતું અને થોડી વારમાં હવે લોકસભા ચૂંટણીનો એક્ઝિટ પોલ અલગ અલગ એજન્સીઓ જાહેર કરશે. આંકડા નંબર મીટરમાં કોણ સરકાર બનાવતું દેખાય છે, કોણ સરકાર બનાવવાની ધાર પર છે, અથવા તો કોને કોની મદદ લેવી પડે એમ છે, અથવા તો શું એવી પરિસ્થિતિ સર્જાશે હંગ એસેમ્બલીની જે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, હંગ પાર્લામેન્ટ થશે, અથવા તો જે 400નો નારો હતો તે માત્ર એક પરસેપ્શન હતું. બીજેપી ફરીથી ત્રીજી વખત, એટલે કે નરેન્દ્ર મોદી શું ફરી ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન બનશે, અથવા તો મલ્લિકાર્જુન ખડગે ટૂંક સમય પહેલા જ હમણાં ઇન્ડિયા ગઠબંધનની આજે બેઠક હતી, બહાર આવીને કહે છે કે ઇન્ડિયા ગઠબંધન જે મેજિકલ નંબર છે 272 તે પાર કરતું દેખાઈ રહ્યું છે ને ઇન્ડિયા ગઠબંધન સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે. તો થોડી વારમાં જ એક્ઝિટ પોલના આંકડા ઘણું બધું કહી જશે. એક્ઝિટ પોલના આંકડા, પરંતુ એ કેટલા એક્ઝિટ પણ સાબિત થાય છે જોવાનું રોચક રહેશે. 4 જૂન બહુ દૂર નથી, પરંતુ એક પરંપરા ચાલી આવી રહી છે. એ પરંપરામાં દરેક મીડિયા તમારા સમક્ષ આંકડાઓ પહોંચી રહ્યા છે. આમ તો સેન્સેક્સ હોય એટલે કે શેર બજાર, કે પછી અલગ અલગ સટ્ટા બજાર હોય, રોજ ભાવ બદલાતા હતા. ખુદ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ પણ કહેવું પડ્યું કે 4 પછી એટલે કે 4 જૂન પછી શેર બજાર રોકેટ થવાનું છે. સેબીના નિયમો મુજબ કહી શકે કે નહીં, વિપક્ષના સવાલોનો કોઈ જવાબ નથી. થોકબંધ ઇન્ટરવ્યુ વડાપ્રધાન મોદીના પણ હતા, પણ એ થોકબંધ ઇન્ટરવ્યુમાં જે વિપક્ષ આરોપ લગાવી રહ્યું છે કે દેશના ઇતિહાસમાં પહેલા એવા પ્રધાનમંત્રી જે હેડ સ્પીચ આપી રહ્યા છે, વિપક્ષનો આક્ષેપ છે. તો એક પણ પત્રકારે આ મુદ્દે સવાલ શું કરવાની જરૂર હતી અથવા તો કેમ ન કર્યું. ચર્ચામાં તો વડાપ્રધાન મોદીની સાધના પણ હતી અને મૌન પણ હતું, જે આજે 3 વાગ્યે સાધના પૂરી થઈ અને સતત મેઇનસ્ટ્રીમ મીડિયામાં કવરેજો ચાલ્યા કર્યા. કેમ કે સવાલ માત્ર લોકસભા ચૂંટણીનો નથી, 2 રાજ્યમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પણ થઈ રહી છે. આ તમામ પરિસ્થિતિઓમાં હિન્દી બેલ્ટમાં શું બીજેપી પોતાનો કોર વોટ જાળવી શકશે? જે દાવા છે પશ્ચિમ બંગાળના કે હિન્દી બેલ્ટમાં જો નુકસાની થઈ તો રિકવરી અમે પશ્ચિમ બંગાળથી કરીશું, અથવા તો દક્ષિણ ભારતના દ્વાર ખોલીશું. 5 રાજ્યોમાં 128 સીટ, જેમાં 100 સીટ પર બીજેપી 0 છે. તો આ પરિસ્થિતિમાં શું આંધ્ર, તમિલનાડુ, તેલંગાણા, આ તમામ જગ્યાએ શું બીજેપી અનએક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ લાવશે? સવાલો ઘણા બધા છે. ટીડીપી, પવન કલ્યાણની પાર્ટી હોય, જેમની સાથે મળીને બીજેપી ચૂંટણી લડી રહી છે. અને આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે હવે જ્યારે ઇન્ડિયા ગઠબંધનના મુખિયા, આમ તો કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે કહી રહ્યા છે કે અમે મેજિકલ નંબર સાથે સરકાર બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ, પણ અહીંયા દાવા તો બધા જ થશે. એક્ઝિટ પોલ બાદ પણ દાવા થશે. તો આ બેઠક જે પૂર્ણ થઈ એમાં વિવિધ મુદ્દે ચર્ચા પણ થઈ, કેમ કે કોઈ કોમન મિનિમમ પ્રોગ્રામ ન હતો. સાથે સાથે ઘણું બધું જોડાઈ ગયું. 295 થી વધુ બેઠકો જીતશે એવું ખડગેએ કહ્યું. 273 બેઠકોનો આંકડો 24 કે 48 કલાક પહેલા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ આપ્યો હતો અને 2.5 કલાક સુધી ઘણા બધા મહત્વના વિષયો પર ચર્ચા થઈ અને ખડગેના નિવાસસ્થાને આ બેઠક મળી હતી. ચર્ચાઓ ઘણી એ થઈ કે ભાઈ 1 તારીખે બેઠક કેમ? 1 તારીખે તો 7મા તબક્કાનું મતદાન છે, જેમાં પશ્ચિમ બંગાળની મહત્વની સીટો છે, યુપી અને બિહારની પણ મહત્વપૂર્ણ સીટો છે. તો પછી મમતા બેનર્જી પણ આ બેઠકમાં ન જોડાયા. પણ શું મમતા બેનર્જી જે તેવરથી ટક્કર આપી રહ્યા છે, અથવા તો વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જે રીતે પગમાં પ્લાસ્ટર હતું અને વ્હીલચેર પર લઈને ફૂટબોલ રમતા અથવા તો ફૂટબોલ ને કિક મારતા એક જે દ્રશ્યો હતા, એને જે સિમ્પથી ઊભી કરી, શું એ જ પ્રકારની સિમ્પથી તેજસ્વી યાદવ માટે હશે બિહારમાં? જે કહે છે કે મેં હેલિકોપ્ટરને ટ્રેક્ટર બનાવી દીધું, 250થી વધુ રેલી, સ્લીપ ડિસ્ક એટલે કે કમરની ગાદી ખસી ગઈ, છતાં પણ એ લડાઈમાં હતા. આ તમામ પરિસ્થિતિઓ યુપીમાં પણ હતી કે જ્યાં 45 થી 50 ડિગ્રી તાપમાનમાં કોઈ ડોમ વગર, કેમ કે પરિસ્થિતિઓ વિપક્ષ માટે એ પણ હતી કે ફંડિંગ અથવા તો પૈસા, તેની પણ તંગી વિપક્ષ ખુદ કહી રહ્યું છે. ઘણા અકાઉન્ટ સીલ થયા હતા. તો ખડગેએ શું કહ્યું? ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ આવો સાંભળ્યું. गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे. ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है
और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। તો ખડગે દાવો કરે છે અને દાવા સાથે સાથે હવે બહુ લાંબા સમય જોવા જેવી રાહ નથી. હા, જોવી પડશે રાહ, કેમ કે 1 થી 6 તબક્કામાં પહેલા તબક્કાના એક્ઝેક્ટ આંકડાઓ કેટલા ટકા મતદાન થયું એ આંકડો આવે છે 11 દિવસ પછી. કેટલો વધે છે? 6.07%. બીજા તબક્કાનો 3 કે 4 દિવસ પછી આવે છે 5.75% વધે છે. અને સંભવત આ બધી જ વસ્તુઓ એક પછી એક ચરણમાં ચાલતી રહી. કોર્ટમાં પણ આ મુદ્દો પહોંચ્યો અને હવે સવાલ એ પણ છે કે એક્ઝિટ પોલના આંકડા તો આવી ગયા, પરંતુ કદાચ 48 કલાક સુધી 7મા તબક્કામાં મતદાન કેટલું થયું આજે રાત્રે તમે આંકડાઓ રિફર કરી લેજો. કદાચ 24 કલાક પછી આંકડો બદલાયેલો હશે. અને આ પરંપરા સામે ઇલેક્શન કમિશનનું મૌન છે એવું વિપક્ષનો દાવો છે. ઇલેક્શન કમિશનનું મૌન એ બાબતનું પણ છે કેમ કે જ્યારે વડાપ્રધાન મોદી કન્યાકુમારી ગયા ત્યારે પણ વિપક્ષ પહોંચ્યું હતું ઇલેક્શન કમિશન માટે. તો આટલી ગરમીમાં શું ઇલેક્શન કમિશન વિપક્ષના આરોપો અનુસાર ધાબળો ઉઠીને સૂતું છે? જેના પર આટલી મોટી જવાબદારી છે વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી કે જ્યાં સરકાર ચૂંટવા માટે અથવા તો એ પ્રક્રિયાને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે જે એજન્સી પર આટલી મોટી જવાબદારી છે, શું એજન્સી શરૂઆતથી જ સવાલોના ઘેરામાં હતું? અમારા વરિષ્ઠ પત્રકાર અને રાજકીય વિશ્લેષક દેવતભાઈ ત્રિવેદી સ્ટુડિયોમાં છે. કૈલાસદાન ગઢવી છે જે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી છે. ટૂંક સમયમાં જ શ્રવણ ગર્ગ આપણી સાથે મધ્યપ્રદેશથી જોડાશે અને આલોક ભદોરિયા આપણી સાથે યુપીથી જોડાશે, કેમ કે યુપી અને મધ્યપ્રદેશ નું ક્લેવર પણ શું કહે છે જરૂરી છે. દેવતભાઈ, પહેલો સવાલ, એ સવાલ પહેલા અમુક શબ્દો મટન, માછલી, મંગલસૂત્ર, ભેંસ, સંવિધાન, ટેમ્પો, મુજરો, બુલડોઝર, બાબરી તાળું, પાકિસ્તાન, શહેજાદા, વોટ જેહાદ, વારસાઈ ટેક્સ, મુસ્લિમ ઓબીસી, કોઈ શબ્દો છૂટી જાય છે આમાં? કદાચ આઝાદ ભારતના ઇતિહાસમાં માનો છો કે આ એ પ્રકારનું ઇલેક્શન છે કે અમુક શબ્દો કે અમુક મુદ્દા 48 કલાકથી વધુ ટક્યા નહીં સત્તા પક્ષ માટે, જે સત્તા પક્ષ 10 વર્ષથી શાસનમાં છે? કઈ રીતે તમે જોયું 7 તબક્કાના ઇલેક્શનને? જ્યારે આપણે એક્ઝેક્ટ આંકડા આવે પહેલા એક્ઝિટ પોલના આંકડા પહેલા આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. સક્રિય પત્રકાર તરીકેના મારા 20 વર્ષ અને એ પહેલા એક સમજદાર જાગૃત નાગરિક તરીકેના બીજા 20 વર્ષ, તો એ સમય દરમિયાન મેં કદાચ જોયેલી આ પહેલી એવી ચૂંટણી છે જેમાં કોઈ પ્રકારનો મુદ્દો જોવા જ ન મળ્યો પહેલેથી છેલ્લે સુધી. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ચૂંટણી મેદાનમાં આવતા પહેલા જે હોમવર્ક કરી રાખ્યું હોય, જે એની કાયમી આદત છે, અને પોતે સેટ કરેલા નેરેટિવ ઉપર આખી ચૂંટણીનો પ્રચાર ચાલે એવી ભારતીય જનતા પાર્ટીની એક સ્ટ્રેટેજી રહી છે. અત્યાર સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી એ સ્ટ્રેટેજીને સફળતાપૂર્વક પાર પણ પાડી છે. આ વખતે પહેલીવાર એવું બન્યું છે અથવા તો એવું વર્તાય છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે એજન્ડા સેટ કરીને આ ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરી એમાંનો એક પણ એજન્ડા ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસક મોવડી મંડળને, નરેન્દ્ર મોદીને, કોઈને પ્રજાને અપીલ કરતો લાગ્યો નહીં. અને એના કારણે છેક સુધી પ્રત્યેક દિવસે પ્રત્યેક સભામાં એમણે નવો મુદ્દો તલાશવાની કોશિશ કરેલી છે. એમાં ઇનહેરિટન્સ ટેક્સ પણ આવી ગયો, મંગળસૂત્ર પણ આવી ગયું, ભેંસ પણ આવી ગઈ, બધું જ તમે જે લિસ્ટ આઉટ કરીને જે ગણાવ્યા એવા દરેક શબ્દો ચલણી બન્યા. પરંતુ પ્રજાને આમાંથી એક પણ મુદ્દામાં અપીલ થઈ હોય એવું મતદાનની સતત ઘટતી ટકાવારી જોતા વર્તાતું નથી. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે ગઢ ગણાય એવા વિસ્તાર, ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે લેથલ વેપન હતું રામ મંદિરનો મુદ્દો, અને રામ મંદિર જ્યાં સ્થિત છે એ ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં ઘટેલી ટકાવારી, મહારાષ્ટ્ર જ્યાં બહુ મોટા પાયે ભાજપે સત્તા મેળવવા માટે ઉથલ પાથલો કરી, પક્ષ તોડ્યા, પક્ષની અંદર ભાગલા પડાવ્યા, ત્યાં સતત ઘટેલી ટકાવારી, અને જે જગ્યાએ ભાજપ કાટેકી ટક્કર આપી રહ્યું છે પશ્ચિમ બંગાળ, ત્યાં સામસામે જે પ્રકારે લોહિયાળ ઇંચ ચૂંટણી થવી ત્યાં સ્વાભાવિક મનાય છે કમનસીબે, એ પણ ત્યાં બંગાળમાં જોવા મળ્યું. બાકીના રાજ્યોમાં દક્ષિણમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ પ્રયાસો છતાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી કોઈ એક મુદ્દો જેમ ઉત્તર ભારતમાં નથી ઉપસાવી શકી એવું જ દક્ષિણમાં ચિત્ર જોવા મળ્યું. બિહારમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી નવું ગઠબંધન નીતિશ કુમારના સાથી પદ આ બધાના આશરે વૈતરણી તરી જવા ધારે છે, ત્યાં પણ કોઈ જુવાળ જોવા નથી મળ્યો. એટલે 2014માં નરેન્દ્ર મોદીને સત્તા પર લાવવાનો જે દેશભરમાં લહેર હતી
2019માં ઉરી અને પુલવામા એટેક પછી જે રાષ્ટ્રભાવના લોકોના મનમાં દેખાતી હતી અને ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી આપવાની માનસિકતા મતદાનમાં દેખાતી હતી. આ 2024માં આમાંનું કશું જ જોવા મળ્યું નથી અને એટલે જ રાજકીય પક્ષો જાત જાતના મુદ્દા ઉઠાવ્યા. પણ એક વાત નોંધવી પડશે કે કોંગ્રેસ અને બાકીના વિપક્ષો તરફથી છબરડા ઓછા થયા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી મુદ્દા શોધવામાં માર ખાધો તો સામે વિપક્ષોએ ખોટા લપસણા ટ્રેક ઉપર જવાને બદલે પોતાની પોલિસીને વળગી રહ્યા, જવાબો લગભગ એકેય બાબતના આપ્યા નથી અને બંધારણથી માંડીને ભેંસ મંગળસૂત્ર સહિતના ઉશ્કેરણીજનક મુદ્દાઓ ઉપસાવવામાં આવ્યા છતાં પણ વિપક્ષે પોતાની રીતે પોતાનો પ્રચાર પકડી રાખ્યો. તો હવે જ્યારે મતગણતરી નજીક છે, આજે હમણાં એક્ઝિટ પોલ આવશે અને એક્ઝિટ પોલને આપણે સાચા માનવાનું કોઈ કારણ નથી, પણ એક્ઝિટ પોલના આધારે ચર્ચા તો ચોક્કસ થઈ શકે, પરંતુ સાચી ખબર આપણને 4મી તારીખે પડશે કે જનતાએ આટલા શબ્દો ઉછળ્યા છે, એમાંથી કેટલા શબ્દોને ધ્યાનમાં લીધા છે અને કેટલા શબ્દોને ધ્યાનમાં લીધા વગર મતદાન કર્યું છે. ઓકે, श्रवण गर्ग અને आलोक भदौरिया अपनी साथ जुड़ाए गया है. श्रवण जी, आलोक जी, दोनों का स्वागत है. श्रवण जी, आपसे शुरुआत करेंगे. आज तो 7वां चरण भी खत्म हो गया. अभी देखने वाली रोचक बात ये होगी कि एग्जैक्ट जो आंकड़ा है, जो वोट परसेंटेज का, वो आने में वक्त लगेगा. जैसी तासीर रही है इस बार सभी चरणों में, लेकिन जैसे देवत भाई ने बात की, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं था जो नेशनल मुद्दा था. मुद्दे वो थे जो जनता को टच कर रहे थे और वो मुद्दे विपक्ष ने एकजुट होकर उठाए. एक ही मैनिफेस्टो चर्चा में रहा. ये बीजेपी जिस मैनिफेस्टो की बात करे, बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात ही नहीं हो रही थी. बीजेपी खुद कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रही थी. अखिलेश, और समझ में आता है कि तेजस्वी यादव या अरविंद केजरीवाल खुद भी उसको फॉलो कर रहे थे, मतलब इंडिया गठबंधन के तौर पर. लेकिन कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 1.5 महीने पहले सभी पत्रकार, सभी सैफोलॉजिस्ट, सब जो अनुमान लगा रहे थे, समय के साथ आप मानते हैं कि काफी कुछ बदल चुका है. जो जनता बोल रही है या फिर जनता साइलेंटली एक्सप्रेस कर रही है, तो क्या इस बार चौंकाने वाली चीजें हो सकती है या फिर एग्जिट पोल भी चौंकाने वाले आंकड़े दे सकता है? जैसे देवत भाई ने बात की, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं था जो नेशनल मुद्दा. मुद्दे वो थे जो जनता को टच कर रहे थे और वो मुद्दे विपक्ष ने आता है कि तेजस्वी यादव या अरविंद केजरीवाल भी उसको फॉलो कर रहे थे, मतलब इंडिया गठबंधन के. लेकिन कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 1.5 महीने पहले सभी पत्रकार, सभी साइकोलॉजिस्ट, सब जो अनुमान लगा रहे थे, समय के साथ आप मानते हैं कि काफी कुछ बदल चुका है. जो जनता बोल रही है या फिर जनता साइलेंटली आवाज नहीं आ रही. और उन्होंने बताया, उन्होंने मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर. लेकिन मेरी आवाज आप तक लेट पहुंच रही है, शायद रिस्टार्ट करके. आलोक जी, यही सवाल आपसे, तब तक श्रवण गर्ग साहब हमसे जुड़ जाए टेक्निकली. देखिए, मुझे लगता है कि जो ये मुद्दा है, आपका जो मुख्य सवाल है कि क्या पहले चरण से लेकर ये 7वें चरण में क्या हुआ, तो पहले चरण में मुझे ऐसा नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ गए हैं, कम से कम अगर हम उत्तर प्रदेश और बाकी जगह की भी अगर हम बात करें तो. लेकिन उसके बाद से, दूसरे चरण के बाद से मुझे लग रहा है स्थितियों में बदलाव आया है और काफी तेजी से चीजें बदलती चली गई हैं. क्योंकि जो नैरेटिव जो बीजेपी जो स्थापित करना चाहती थी, मोदी जी जो स्थापित करना चाहते थे, वो नैरेटिव कहीं भी स्थापित नहीं हो पा रहा था.
इसकी मुख्य वजह थी कि जो विपक्षी गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, इसके प्रमुख घटक कांग्रेस या आप तेजस्वी को भी ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप अखिलेश यादव को भी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी के, ये लोग अपने मूल एजेंडे से, अपने मूल मुद्दों से ये जुड़े, जनता के सरोकार से जुड़े रहे, ये कभी भी भटके नहीं अपने मुद्दों से। बार बार भाजपा ने अपने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। मोदी साहब के भाषण आप देखिए, दूसरे चरण के बाद से वो काफी उनके बोल बिगड़ते चले गए, और अगले चरणों में, तीसरे चरण के बाद तो बोल काफी ही बिगड़ते चले गए। लेकिन इन लोगों ने अपना टर्फ नहीं छोड़ा। इसको अगर क्रिकेट की भाषा में कहें, चूंकि आप गुजरात से हैं, तो इन्होंने बाहर जाती गेंदों को छुआ ही नहीं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी लेकिन वजह इस से बार क्रिकेट भी आ गया ना, जेंटलमैन्स गेम। पीएम कहते हैं पहले मोहम्मद शमी की मतलब प्रशंसा करते हैं, बाद में ये भी कहते हैं कि ये तो वहां भी मतलब मुस्लिम घुसा देंगे। तो जेंटलमैन्स गेम भी अभी अछूता नहीं रहा इस इलेक्शन में। बात सही है आपकी, इन्होंने क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा, लेकिन मैं तो क्रिकेट के एक अच्छे बैट्समैन की आदत बता रहा था, बाहर जाती गेंदों को छोड़ देता है वो। तो वही विपक्षी गठबंधन ने किया, उन्होंने जितने भी ये मुद्दे उछालने चाहे, चाहे मंगलसूत्र हो चाहे कहीं हो, ये नहीं, इसके जाल में वो नहीं फंसे, और वो केवल अपने मुद्दे पे कायम रहे। बेरोजगारी जो सबसे प्रभावित करने वाली थी, ये बहुत एक बड़ा मुद्दा रहा, और इन्होंने इसको कभी छोड़ा नहीं। इसके अलावा महंगाई पे भी ये लगातार लगे रहे। और एक चीज और है, जैसे हम लोग जैसे अर्थव्यवस्था में के शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं ना, तो इसको राहुल गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से जनता तक पहुंचा दिया। ये मेरा मानना है कि बहुत ये सरकार, जैसे जो पहले दौर में जो कहा गया था सूटेड बूटेड सरकार है, वो इन्होंने एक स्थापित करने की बड़ी जनता में एक बड़ी मदद करी। और एक जो बड़ा मुद्दा था, जो 400 पार का मुद्दा था, वो भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गया। वो संविधान को बदला जाएगा, यानी आरक्षण खत्म होगा, यानी दलितों को जो समाज में आगे बढ़ने का जो अवसर मिलता था वो खत्म हो जाएगा। ये इस मुद्दे ने कम से कम हिंदी पट्टी में तो बहुत गहरी छाप छोड़ी है। वो इतनी ज्यादा छाप छोड़ी है कि अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो जैसे अगर बहुजन समाज पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी को भी थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। इसलिए दिक्कत आ गई है कि अभी तक इसको ये माना जाता था कि ये अंततः हो सकता है सत्तारूढ़ केंद्रीय मतलब भाजपा के साथ चली जाए, कुछ एक सॉफ्ट जो इसका स्टैंड रहता था बीजेपी के प्रति, क्योंकि वो इस स्टैंड के कारण ये माना जाता था। लेकिन इस आरक्षण वाली बात में कि संविधान बदलने से आरक्षण खत्म और सब कुछ अधिकार खत्म, ये इतना गहरा बैठ गया कि इस वर्ग के, इसके समुदाय ने भी, इनका जो कोर वोटर है, वो वोटर भी इस तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ खिसक गया। आलोक जी, तो आपने बहुत ही अच्छी बात की। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जब असेंबली इलेक्शन हुए थे यूपी में, 19% के आसपास मायावती का जो वोट शेयर था 13% के आसपास आ गया, सिर्फ एक सीट मिली। अभी जो उसके बाद के जो तेवर है, अपने उत्तराधिकारी को रातों रात बदल दिया। 3 ऐसी सीटें थी, रात को आधी रात में उम्मीदवार बदले गए। तो क्या हम ये माने कि जहां 80 सीट की लड़ाई है, यूपी ही तय करता है, लखनऊ का रास्ता ही तय करता है कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा? तो क्या बीजेपी इस सिचुएशन में है कि जो बीएसपी या मायावती के जो हार्डकोर वोटर है, वो क्या इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट होते दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो फिर ये क्या परिवर्तन ला सकता है यूपी में? ये चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति जो मुझे समझ में आ रही थी, वो ये थी कि बसपा के वोट या तो भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाए या फिर मायावती के पास ही में रहें, ताकि त्रिकोणा मुकाबला हो जाए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को एज मिल जाए। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी यह रणनीति सफल नहीं हुई। इसकी मुख्य वजह 2 है। आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे जौनपुर में उन्होंने वो धनंजय कुमार वाले मामले में कैंडिडेट बदला, सब कुछ किया, मानता हूं मैं इस चीज को। लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा, मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा नुकसान उससे पहुंचाया जो अपने जो भतीजे के ऊपर जो कार्रवाई करी ना, उनके भतीजे के अगर आप भाषण सुन लें जो पहले के हैं, उनमें चरण से पहले, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग उगलते हुए नजर आ रहे थे। इतनी आग उगलते हुए नजर आ रहे थे, तो उसकी वजह से जो दलित है उसका भारतीय जनता पार्टी से मुंह भंग हो रहा था। तो वो जो स्थिति थी, वो जो बी टीम वाला जो एक लेबल चिपका हुआ था, जो चस्पा हो गया था मायावती जी के ऊपर, उससे भारतीय बहुजन समाज पार्टी बाहर आ रही थी। अगर वो बाहर आती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की मंजिल बहुत मुश्किल हो जाती। इसीलिए उन्होंने मायावती जी से वो नोटिस निकलवाया। उस नोटिस की सबसे खास बात ये है
एक लाइन और कहूंगा, उस नोटिस की सबसे खास बात है, मायावती जी ने आज तक किसी को भी पद से निकाला हो, कोई भी उसकी जिम्मेदारी ली तो एक लाइन का नोटिस देती थी वो, कि उनको पद से मुक्त किया जाता है, उनको दूसरा काम दिया जाता है। लेकिन पहली बार उन्होंने इसकी बड़ी लंबी चौड़ी सफाई दी। यहाँ तो दलितों के वर्ग में तो ये भी माना जाता है, हो सकता है कि कहीं से नोट इनको आया हो और इन्होंने पढ़ दिया हो। तो इस तरीके की चीजों से काफी नुकसान हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद है। लेकिन अभी भी मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी इतना कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जो जहां तक कम वोटों की बात है ना, कम वोटों के जो केवल उसको भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान नहीं मानना चाहिए, तो उसका नुकसान दूसरे है कि दूसरे जो समर्थक हो सकते हैं विपक्षी दल के, हो सकता है कि वोटर उनके भी ना निकले हों। तो इसके लिए थोड़ा सा तो एक इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, आपका जो मूल सवाल है उसका निश्चित तौर पे है, जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते चले गए, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें तीसरे चरण के बाद से लगातार बढ़ती चली गई, उत्तर प्रदेश में और ओके, गर्ग साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल। गर्ग साहब, जो 400 का नारा है बीजेपी का, और जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बीच बीच में 400 का नारा आया, और उसके बाद में अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, ज्योति मिर्जा, उसने ऐसे ही बात कह दी कि ये 400 तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए चाहिए। तो ये क्या संविधान वाली बात नीचे तक पहुंच गई है, या फिर पहले दो चरण में उस चीज का एहसास हुआ? क्या वो रिफ्लेक्ट होता दिख रहा है इस बार? देखिए क्या चीज हुआ, ये 400 का जो नारा है ना, ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, अनरियलिस्टिक था। 400 से ऊपर सीटें भारत के चुनाव के इतिहास में सिर्फ एक बार मिली है, और वो मिली है 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद जो चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को 414 सीटें मिली थी। सिवाय उसके कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 400 से ऊपर सीटें नहीं मिली है। अब ये जो 400 से ऊपर का नारा है जो भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी ने जो दिया, अब ये तो ऐसा नारा है कि किसी डिक्टेटरशिप में दिया जा सकता है। मतलब कोई तानाशाही सरकार हो और वोटरों के सिर पे बंदूक रख के बोले कि वोट डालो तो ही 400 मिल सकते हैं। अब आपने देखा ना कि 400 की बात किसी ने की नहीं। तीसरे चौथे चरण के बाद, फेज के बाद, अभी जो अमित शाह जी ने भी कहा थोड़े दिन पहले, पांचवें चरण के बाद कहा कि हमको पांचवें चरण के बाद भी 310 सीटें मिल सकती है, 300 के ऊपर सीटें मिल सकती है। अब वो 400 की बात तो कोई कर नहीं रहा। आज भी प्रशांत किशोर की बात आई है, वो 303 की आई है। मुद्दा ये है, देखिए कि इनको 400 सीटें या 370 सीटें मिल कैसे सकती है। मतलब अगर आप पूरे दक्षिण भारत की 150 सीटें देखें, जहां इनको अभी कितनी सीटें, 37 सीटें हैं 150 में से। अब उसमें 150 सीटों में भी जो अगर आप देखें कि तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटका की 150 सीटें हैं, उसमें 37 सीटें हैं सिर्फ। और ये 37 सीटें जो हैं वो तब मिली थी जब 2019 में कर्नाटक में इनकी सरकार थी। उसमें 26 सीटें इनकी हैं उसमें, और जो पूरी की पूरी सीटें हैं। कांग्रेस को तो एक ही सीट मिली थी। अभी कर्नाटक में इनकी सरकार भी नहीं है विधानसभा में जाने के बाद, और तेलंगाना में भी डीआरएस नहीं है, कांग्रेस की सरकार। अब आप ये 545 में से 150 सीटें कम कर दो, तो इनको 400 सीटों में से आप ये बताइए कि कितनी सीटें मिलना चाहिए। मतलब एक मोटा, मतलब 543 सीटें हैं, उसमें से 150 कम कर दें, और अभी 37 सीटें हैं 150 में से, तो 400 में से कितनी मिलना चाहिए? 400 में से 400 मिलना चाहिए कि 370 मिलना चाहिए? तो ये जो पूरा का पूरा इन्होंने जो खड़ा किया था वो बहुत ही अनरियलिस्टिक था। और ये नुकसान क्या हो गया? आपने जो इनसे सवाल पूछा मायावती को लेकर, ये आकाश आनंद को इन्होंने क्यों हटाया? आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था।
जो उनके भतीजे हैं मायावती के, उन्होंने। ओके गर्ग साहब हम यूपी जी। पे आएंगे, बीएसपी पे आएंगे, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, लेकिन आप अपनी बात आगे ब्रेक के बाद बढ़ाएंगे हम यूपी में, क्योंकि बीएसपी और मायावती ने ऐसे कैसे कठोर मतलब डिसीजंस लिए, वो भी रोचक होगा आपसे समझने के लिए, और पूरा हिंदी बेल्ट का और यूपी का जो समीकरण है जो बना हुआ है। तो એક્ઝિટ પોલ પર ચર્ચા થશે, આંકડા ખુલશે, પરંતુ સાતમા તબક્કામાં 5 વાગ્યા સુધીમાં જે આંકડાઓ સામે આવ્યા છે, આંકડાઓ બદલશે 100% પણ 5 વાગ્યા સુધીના આંકડાઓ જે સામે આવ્યા છે સાતમા તબક્કામાં 57 સીટ પર 58.34% સરેરાશ મતદાન નોંધાયું છે। સૌથી વધુ પશ્ચિમ બંગાળમાં 69.89% મતદાન નોંધાયું, અને સાથે સાત તબક્કામાં એક તાસીર બંગાળની પણ રહી છે કે સૌથી વધુ મતદાન પશ્ચિમ બંગાળમાં નોંધાયું છે। યુપીમાં 54%, હિમાચલમાં પણ એની આસપાસ, બિહારમાં 48.86%, પંજાબમાં 55.20% મતદાન નોંધાયું છે। તો 57 સીટ છે, અને ચંદીગઢ જે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ 62.80% મતદાન નોંધાયું છે। એ જ ચંદીગઢ કે જ્યાં કઈ રીતે વોટની હેરફેર થઈ અને કઈ રીતે ખુલ્લું પડ્યું કે કઈ રીતે લોકશાહીમાં ખુલ્લેઆમ સત્તાઓ બદલાઈ છે અને મેયર ચૂંટાઈ છે। તો સાતમા તબક્કાના આંકડાઓ છે, હવે આંકડાઓ 6 વાગ્યા સુધીના આવશે અને ધીમે ધીમે આંકડાઓ બદલતા પણ રહેશે। મોડી સાંજ સુધીમાં જે આંકડો આવશે એ આંકડો પણ કદાચ ટકશે કે નહીં, જે અનુભવો રહ્યા છે છેલ્લા 4 તબક્કાના, તેના પરથી એટલું ચોક્કસ કહી શકાય। આપણી સાથે દેવતભાઈ ત્રિવેદી, કૈલાશદાન ગઢવી, શ્રવણ ગર્ગ, આલોક ભદોરિયા છે। આલોકજી આપણી સાથે હતા ब्रेक पहला, અને पहला श्रवण गर्ग साथे चर्चा करी रहा था। श्रवण जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, जो यूपी के बारे में, मायावती के बारे में, बीएसपी के बारे में चल रही थी, क्या इम्पैक्ट रहेगा इस बार यूपी में? देखिए, यूपी जो है बड़ा, इस पूरे इलेक्शन में स्विंग स्टेट यूपी बनने वाला है। स्विंग स्टेट इसलिए बनने वाला है कि यूपी में जितना भी फर्क हो जाएगा इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसका सबसे बड़ा फर्क चुनाव के नतीजे पर पड़ेगा। इस बार जो उम्मीद कर रहे हैं सारे के सारे लोग, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को वहां 30 से 35 सीटों का फायदा होना चाहिए। अभी वहां पर कांग्रेस के पास 1 सीट है और समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें हैं। बाकी 10 सीटें मायावती जी के पास हैं, 2 सीटें अपना दल के पास हैं। इस तरह से डिवीजन है वहां, मतलब मोटा मोटी तो वहां पर बीजेपी के पास ही सारी की सारी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर बहुत फर्क पड़ता है और बिहार में बहुत फर्क पड़ेगा, इन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। बंगाल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर महाराष्ट्र में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो कह रहा था कि महाराष्ट्र में अभी 48 सीटें हैं वहां टोटल, और उसमें 23 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है, मतलब सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है वहां महाराष्ट्र में। तो इसलिए जो फर्क पड़ने वाला है यूपी में, इतना फर्क पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन का दावा है, आज भी खड़गे जी ने जो दावा किया कि 295 सीटें मिल रही है इंडिया गठबंधन को, उसका बुनियादी जो आधार है वो बिहार है, पंजाब है और दिल्ली है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। तो इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और आप देख रहे हैं इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है वो पूरा का पूरा हिला हुआ है। अब इसमें एक चीज है सिर्फ कि अगर कोई बड़ी ईवीएम की गिनती में या वीवीपैट की पर्चियों की गिनती में या किसी तरह का जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसमें कोई सच्चाई पैदा होती है तो फिर मामला बदल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग अभी भी अपनी बात पर कायम है कि उनकी सरकार बनने वाली है। दूसरा मुद्दा यह है कि सरकार अगर बनती है, क्योंकि उसके कई कारण है बनने के, कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके बीजेपी इमर्ज होती है और राष्ट्रपति उनको बोलते हैं आने के लिए और वो सरकार बनाते हैं और उनको बहुमत सिद्ध करने का कोई टाइम मिलता है। तो उस बीच में इंडिया गठबंधन का कोई फैक्शन टूटता है या कोई जो फेंस पर बैठे हुए दूसरे दल हैं, जैसे जगन रेड्डी हैं या बीजेडी है या बीएसपी है, जिन्होंने अभी कोई अपनी
संबद्धता किसी के साथ बताई नहीं है, तो हो सकता है कि वो बहुमत के आंकड़े को छूने की कोशिश करे। पर जो हमको नहीं लगता, इसीलिए कांग्रेस ने एग्जिट पोल से अपने आप को विड्रॉ कर दिया है। नहीं वो सर, आज उसकी पवन डिबेट- खेड़ा का स्टेटमेंट आया कि हम एग्जिट पोल में भी जाएंगे। थोड़ी देर पहले की बात है, वो कितनी सच्चाई, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा था। अब तो लाइनअप भी हो चुका है, शायद हम भी इस पैनल में कांग्रेस के कोई प्रवक्ता नहीं है तो वो भी ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो ये उनका स्टैंड कायम है कि वो एग्जिट पोल में नहीं आ रहे हैं। मैंने जो अभी खड़गे साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सुना है, या आखिरी मिनट तक जो मैंने सुना है, अब हो सकता है कि मैं आपके साथ बैठा हूं, इस बीच में कोई फर्क आ गया हो तो मुझे पता नहीं। पर वो एग्जिट पोल में कांग्रेस के जाने का या विपक्षी दलों के जाने का कोई कारण भी नहीं है। क्योंकि एग्जिट पोल जो आने वाले हैं वो बिल्कुल इस तरह के आने वाले हैं कि बीजेपी को या एनडीए को 350-370 सीटें मिल रही है, 350 के करीब सीटें मिल रही है। वो अगर मिलती है तो थोड़ा सा वो, उसमें अगर कांग्रेस जाती है तो कांग्रेस क्या बोलेगी, कांग्रेस का प्रतिनिधि उसमें डिबेट में जाके क्या चीज कहेगा। तो इसलिए कांग्रेस को जाना भी नहीं चाहिए। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला किया है, तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि वो किया लेकिन है। सर एक बात ये भी है कि एग्जिट पोल के ऊपर भी जो सवाल उठते हैं, ऐसे नहीं, 80-20 का रेशियो भी होता है। कभी कभार 300 सीट बोल दिया तो स्टेट वाइज कहीं कभार समीकरण बिगड़ जाता है, लेकिन एग्जिट आंकड़े के आसपास पहुंचते हैं तो एग्जिट पोल का तो यही मतलब होता है कि हम सबसे नजदीक है तो हम सक्सेसफुल। जो एग्जिट पोल एमपी, आप तो खैर वहां से है, मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल हुए थे, एग्जिट मैं पोल के आपको बाद जो एक सबको चीज- चौंकाया रिजल्ट ने, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए 2019 के जितने 13 एग्जिट पोल हुए थे 2019 में, उसमें इंडिया टुडे, एक्सेस माय इंडिया का जो पोल था, उसमें 352 सीट दिया था एनडीए को लगभग। तो वो लगभग उतना ही सीटें एनडीए को मिला था, मतलब 352 के करीब मिला था। अब इसमें एक्सिस माय इंडिया का अभी तक इसमें पोल में आता है कि नहीं आता है, और क्योंकि उनके जो चीफ हैं, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में जो उनके बारे में कहते हैं कि वो काफी उनको उनकी बीजेपी के साथ क्लोजनेस है। तो इसलिए क्या दिक्कत है कि अभी एग्जिट पोल पर किसी पर यकीन नहीं कर सकते, किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, पोलस्टर्स हैं, योगेंद्र यादव का भी जो कहना है या और तमाम लोगों का कहना है, वो बीजेपी को या एनडीए को 250 से ज्यादा सीटें नहीं दे रहे। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप डिबेट में जाते हैं तो फिर आपको अपनी बात कहने के लिए डिफेंड करना पड़ता है। तो अभी जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये जो चुनाव है काफी कांटे की टक्कर का हो गया है। जैसे मैं आपसे ही पूछूं कि गुजरात में क्या 1 या 2 सीट का नुकसान हो सकता है क्या भाजपा को, तो आप क्या कहेंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर मेरे को जो खबर है कि गुजरात में 4 से 5 सीट का नुकसान हो सकता है, अगर मैं ऐसा मानता हूं तो 4 से 5 सीट अगर नहीं भी है और 3 सीट भी है गुजरात में, जहां 26 की 26 सीट 2014 में भी मिली, 2019 में भी मिली, तो 3 सीट की कमी भी 10% होती है। मेरे को पता है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी लूज कर सकती है। मुझे पता है राजस्थान में कम से कम 8, 9, 10 सीटें लूज कर सकती है। तो ये जो टोटल 15% का जो एवरेज आता है, अगर 303 सीटें उनकी पिछली बार थी, उसमें अगर आप 15% कम कर दें तो आप सोचिए कि कितनी सीटें बनती हैं। तो मैथमेटिक्स तो बोलता है कि इनको बहुमत नहीं मिलता। नहीं, सही बात सर। हम ये जो लूज कर रहे सीट या फिर जो मतलब जो वहां पे लूज कर रहे हो, तो रिकवरी कहां से होगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, वो डिफेंड करने के लिए आए हैं। કૈલાસદાન, હવે શું એટલા માટે એક્ઝિટ પોલમાં, કેમ કે પવન ખેડાની બાઇટ પણ છે અને કહ્યું છે કે અમે જઈશું, પણ આ પ્રકારના આંકડા આવવાના છે, ઇન્ડિયા ગઠબંધનને પણ ખબર પડી ગઈ છે અને ઇન્ડિયા ગઠબંધનને પણ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ 295નો આંકડો આપી દીધો, એટલે કે જો કટ ટુ કટ 245-50 વાળી જો સ્ટોરી રહી
તો પછી જહાજમાંથી કૂદતા અડધી રાત્રે અંતરાત્મા જાગતા જે નેતાઓ છે અને દળો છે એમને સંભાળવા માટેની રણનીતિ પર શું આ ખાસ કામ થયું હશે આ દિલ્હીની જે બેઠક પૂર્ણ થઈ ઇન્ડિયા ગઠબંધનની? જો જ્યારથી આ એક્ઝિટ પોલનો કામ ચાલુ થયો છે ને, ખાસ કરીને પબ્લિકમાં જઈને સર્વે કરીને ટીવી થ્રુ બતાવવાનું, ત્યારથી લગભગ એ ખોટા પડ્યા છે યા ઊંધા પડ્યા છે યા પાછળથી પોતાનો લોજિક એવું આપ્યું છે કે અમે આટલો સેમ્પલ લીધો તો આ ઝોનમાં નતા ગયા, ગામડામાં ઓછા ગયા, શહેરમાં વધારે ગયા, ઘણા જાતના ભાતના એ લોકો પોતાનો એક્સક્યુઝ આપે છે. ક્યારે એનો એક્ઝિટ પોલ ખોટું પડે પછી સરકાર બદલી જાય છે ઘણી વખત. એક્ઝિટ પોલ જે છે ને, એક્ઝિટ પોલ એ થોડા પ્રોફેશનલોને ચૂંટણી સમયમાં એક સારો ઓપોર્ચ્યુનિટી છે બિઝનેસ કરવાનો અને એ કરે છે. એ સમયે જે પક્ષો સત્તામાં હોય યા જે પક્ષો પાસે પૈસા હોય એ એના ફેવરમાં એવો એક્ઝિટ પોલ ફેરવી લે છે, જે શ્રવણજીએ તો ભય પણ બતાવ્યું. એટલે કહેવાનો મતલબ એક્ઝિટ પોલ તો વિચારવા સમય એક વન ટાઈપ ઓફ ટૂલ્સ છે આ પોલિટિક્સ. જેમાં આપણે 44 દિવસ ચૂંટણી આમ ચાલી ને તો આ 4 દિવસ આ એક્ઝિટ પોલના નંબર પિક્ચરો ચાલશે અને છેલ્લે 4 તારીખ છે ને આ દેશનો ભવિષ્ય બનાવશે. અને આ દેશનો ભવિષ્ય જનતાએ નક્કી કરી દીધું છે, આ દેશની જનતાને. અને આ જનતાએ કીધું છે અચ્છે દિન આएंगे મોદી સાહેબ જાएंगे. મજા એ છે, હું શું કીધું, અચ્છે દિન આएंगे મોદી સાહેબ જાएंगे. ભાજપ છે ને, ભાજપ આ ચૂંટણીમાં ક્યાંય હતી જ નહીં. આ ચૂંટણીમાં નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ બેની જોડી જ આખા ચૂંટણી આખા ભારતમાં જોઈ લો. જે ભાજપના રિઝલ્ટ સ્ટેટ વાઇઝ નેતાઓ છે ક્યાંય એટલા એક્ટિવ નતા, એ માત્ર પોતાની સીટ સાચવવા બેઠા હતા. પોતાના નામ પર ચૂંટણી લડ્યા છે અને આરએસએસ ને બજારમાં છોડી દીધું, બજારમાંથી આરએસએસ સાઈડ લઈને લીધી હતી. અને થોડા ઘણા આરએસએસ ના જે કટ્ટર ઈમાનદાર લોકો હતા જે આરએસએસ થી જોડાયેલા, એ લોકોએ પણ શું કર્યું કે જ્યારે એમના ભાજપ પ્રમુખ કહી દીધું કે આ તો સામાજિક સંસ્થા છે તો એ છટકીને જતા રહ્યા. એટલે 4% બીજા વોટે પડી ગયા. એના પછી છેલ્લા 3 તબક્કા છે ને એ ભાજપ માટે હારાકારી જેવું છે. એટલે હવે જે આજની તબક્કો, આજની પરિસ્થિતિ જે અમને વાત કરી, આજની પરિસ્થિતિ તમે ટોટલ આંકડા કહો તો એક્ઝિટ પોલ તમે જોવાના છો તો મારો એક્ઝિટ પોલ તમને આપી દઉં કે ભાજપને 210 થી 220 સીટથી વધારે નથી મળવાની. અને ભાજપ ક્યારે પણ આ ચૂંટણીમાં એના એનડીએ 250 થી ઉપર નથી જવાની. એટલે આ તો જાય છે. અને અમારે એક્ઝિટ પોલ આપી દઉં, અમે 295-300 સીટ લાવીએ છીએ ઇન્ડિયા ગઠબંધન. ઓકે, ચલો દેવતભાઈ, એક રેપિડ રાઉન્ડ થઈ જાય. આમાં શું બધા જ જગ્યાએ એમ છે કે ત્યાં લૂઝ કરી રહી છે બીજેપી, લૂઝ કરી રહી છે. તો રિકવરી ક્યાંથી કરશે એ પ્રશ્ન છે. જે સાઉથ અને પશ્ચિમ બંગાળની જે વાત થઈ રહી છે, અથવા તો કર્ણાટક તેલંગાણામાંથી વાત થઈ રહી છે, તમિલનાડુ આંધ્રામાંથી વાત થઈ રહી છે, શું જે નુકસાનીનો અંદેશો છે, અથવા તો જે યોગેન્દ્ર યાદવની વાત કરી, આજકાલ તો યોગેન્દ્ર યાદવ પીકે આ વર્સિસ ચાલી રહ્યું છે, તો જેટલી નુકસાની છે એના ખાડાની શું ભરપાઈ દક્ષિણ ભારતમાંથી અથવા તો પશ્ચિમ બંગાળમાંથી શક્ય છે ખરા અત્યારની પરિસ્થિતિએ? શરૂઆતથી ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે એ બહુ મોટો પડકાર હતો. 400 કે પાર એવું બોલવું એ તો ઠીક છે, એક પ્રકારનું સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ હોય. બાકી શ્રવણજીએ કીધું એમ કે 400 બેઠક લાવવી એ ભારતીય રાજનીતિમાં 1000 ચમત્કાર બન્યો છે કે એનાથી વધારે આટલી મોટી સંખ્યામાં બેઠકો મેળવવી. એટલે 400 કે પાર કે 5 લાખની લીડ, આ બધું કાર્યકર્તાઓનો એક જુસ્સો વધારવાનું ગિમિક હોઈ શકે. ઉપરાંત લોકોના મનમાં એક ભૂરકી આંજવાનું છે કે અમે આટલી હદે સક્ષમ છીએ એટલે વિપક્ષ કોઈ ચિત્રમાં જ નથી, એવું એક છાપ ઊભી થાય. મૂળ મુદ્દો એ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે આ ચૂંટણીની શરૂઆતથી સૌથી મોટો પડકાર એ હતો કે અત્યાર સુધી 2014 અને 19માં મેળવેલી સફળતાનું પુનરાવર્તન કરવું કેટલે અંશે મુશ્કેલ છે ભાજપને ખબર હતી. કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે કોર એરિયા છે, જ્યાં ભાજપની હથોટી છે, જ્યાં ભાજપના એજન્ડાના મુદ્દાઓ ચાલે છે, એ બધા જ રાજ્યોમાં ક્લીન સ્વીપ થઈ ચૂકી છે. હવે આનાથી વધારે થાય તો શું થાય? નુકસાન થઈ શકે, ફાયદો થવાની શક્યતા નથી. જેમ કે ગુજરાત 2 વખત 26માંથી 26 બેઠકો આપી છે ગુજરાતે, તો ગુજરાતમાં હવે ફાયદો વધારે મળવાનો નથી. 26માંથી 2 પણ ઓછી થાય તે ભાજપને તો બહુ મોટો લોસ છે. કારણ કે બીજે એણે ક્યાંક 2 મેળવવી પડે, આ 2 બેઠકો ગુમાવેલી બેઠકો હિસાબ તાળો મેળવવા માટે. એ 2 બેઠક મેળવવી ક્યાંથી? તમે જેમ કીધું એમ ગેઇન ક્યાં છે, ફાયદો ક્યાં છે? એ ફાયદા માટે ભાજપે આ વખતે દક્ષિણ ઉપર નજર દોડાવી. પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ દેખાવ સુધારે તો પણ પશ્ચિમ બંગાળમાં મેક્ઝિમમ ભારતીય જનતા પાર્ટી 15 બેઠકોનો ફાયદો મેળવી શકે, એનાથી વધારે. કારણ કે ત્યાંય બેઠકની લિમિટમાં આવી જાય, 15 બેઠક મેળવે એટલે. જે ગયા વખતની બેઠકમાં બીજા 15 ઉમેરો એટલે પશ્ચિમ બંગાળની ટોટલ સીટ પૂરી થવા આવે. તો ક્લીન સ્વીપ સાવ પશ્ચિમ બંગાળમાં થઈ શકે એવું માનવાનું અત્યારે કોઈ કારણ નથી. તૃણમૂલ કોંગ્રેસની સામે બહુ મજબૂત ફાઇટ આપે તો પણ ભાજપને ફાયદો ત્યાં 15 બેઠકોનો થાય. એની સામે
ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, આ રાજ્યોમાં ભાજપ પોતાની મેક્સિમમ નહીં ઓપ્ટિમમ કેપેસિટી ઉપર છે, મેક્સિમમ થી ઉપર, આનાથી વધારે સ્કોપ જ નથી ત્યાં. 26 બેઠક આપી દીધી, રાજસ્થાન 25 બેઠક હોય તો એવા સંજોગોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે 400 બેઠક ભૂલી જાઓ, સ્પષ્ટ બહુમતી પણ બહુ મુશ્કેલ બને છે. અને એ સ્પષ્ટ બહુમતી મેળવવા માટે 300+ જવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ દક્ષિણના રાજ્યો, સાથી પક્ષો એના ઉપર મદાર રાખવો પડે. તામિલનાડુમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ પ્રયાસો, છેલ્લામાં છેલ્લા પ્રયત્નો સુધી પણ તામિલનાડુમાં ભાજપને એટલી હદે નથી મળ્યું જેટલી હદે ત્યાં ડીએમકે સોમનાથના દરિયાકાંઠે તમિલ સંગમ કાર્યક્રમ પણ થયા, કદાચ લાગ્યું કે વિધાનસભા માટે નહોતું, લોકસભા માટે પરિસ્થિતિ ભારતીય જનતા પાર્ટીની હથોટી છે કે એડવાન્સમાં એની પોલિસી ચાલે, એડવાન્સમાં સ્ટ્રેટેજીઓ, ખબર જ છે કે આ રાજ્યો પર ફોકસ કરવું છે. આજે પણ તમે જુઓ, ગઈકાલે કન્યાકુમારીમાં જતી વખતે પેરિયાર પહેરવેશમાં વડાપ્રધાન જોવા મળે, અને આ કઈ પહેલી વાર નથી. છેલ્લા લગભગ 6 મહિનામાં વડાપ્રધાને દક્ષિણ ભારતીય પહેરવેશ ધારણ કર્યો હોય એવો મારા ખ્યાલમાં ચોથો બનાવ છે. એટલે આ એમની હથોટી છે કે દક્ષિણ ઉપર ફોકસ. હવે એ 4 તારીખ સુધીમાં આપણને ખબર પડશે કે કેટલે અંશે હિન્દી બેલ્ટમાં ગઢમાં થયેલું नुकसान भाजप सरभर કરી શકે. ओके, एक रैपिड राउंड है आलोक जी और गर्ग साहब आपके लिए भी. आलोक जी आपसे शुरुआत करेंगे. जो हिंदी बेल्ट है, मतलब यूपी में 80 में से 62, बिहार में 40 में से 39, मैं एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूं, या फिर महाराष्ट्र में 48 में से 42. तो ये जो लूज करने वाली बात है, तो क्या आखिरी चरण तक जो भगवा वाली बात है या हिंदुत्व की बात है, वहां पे लूज कर रहे हैं, या फिर उसके हिसाब से जो ये कन्याकुमारी जाएंगे तो साउथ इंडिया में असेंबली इलेक्शन के साथ साथ लोकसभा में भी कुछ उसकी भरपाई हो जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कितना पॉसिबल है? देखिए, पहली बार ऐसा है 2014 और 19 के बाद में 2024 में ये कोई भी अपना मुद्दा एजेंडा सेट नहीं कर पा रहे हैं. ये जो भी मुद्दा उठाते हैं, जो भी नैरेटिव बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से इनका नहीं बन पा रहा है. तो इसलिए वो कन्याकुमारी में वो विवेकानंद की शिला पर बैठ लें, चाहे कहीं कर लें, कैमरे लगा लें, तो वो उनकी कोई भी चीज लोगों को, वोटरों के मन में छाप छोड़ नहीं पा रही है. चाहे वो कितना भी वो हिंदुत्व का कर ले, भले ही वो केदारनाथ वाला पिछले चुनाव में चल गया हो, लेकिन वो पिछले चुनाव में केदारनाथ वाली गुफा में मैं नहीं मानता कि उसकी वजह से उनका हुआ. केवल वो राष्ट्रवाद था, पुलवामा था, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक था इनके सत्ता में मजबूती से वापसी का. लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है. तो जब आपके पत्ते जब सही नहीं पड़ते हैं, तो आपके कोई भी मुद्दा जब आप जनता के दिलो दिमाग में नहीं छा पाता है, और आप हमेशा सफाई देने में लगे हुए हैं, आपने अभी तक कोई ये नहीं बताया कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं. और जो छोटी छोटी घटनाएं होती है ना, वो घटनाएं आपकी बता रही हैं कि आपका धरातल आपका कमजोर हो रहा है, आप फिसलन में है. अब फिसलन को थामने के लिए आप जो भी काम, जो भी फैसला कर रहे हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं, वो कहीं भी कदम उनको नहीं पहुंचा पा रहा है. और जहां तक एक संघ की बात है कि संघ जैसे लोगों को निकाल के ले जाता था, टॉकिंग पॉइंट बनाता था, तो अभी तक ये था कि भारतीय जनता पार्टी टॉकिंग पॉइंट इनके अपने मुद्दों पर बनाती थी. इस बार नहीं बना पा रही है. उसके कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी है, वो अपने प्रधानमंत्री के या मौजूदा जो 2 वर्चस्व वाले नेता हैं, उनके बयानों को जस्टिफाई भी ढंग से नहीं कर पा रहा है. तो इस बार ये विकास में सबसे बड़ी दिक्कत ये है. और हिंदुत्व के एजेंडा की जब बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन ये नहीं चल पा रहा है, जमीन पर ये नहीं दिख रहा है. लेकिन अब ऐसा भी नहीं कह सकते, ये अपने हार्डकोर मोदी साहब जो भी होता है, वो हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं, चाहे वो कहीं भी रहे, कुछ भी कर. तो ये अपने वोटर को तो पक्का कर ले रहे हैं, इसमें कोई शक भी नहीं. जो एम फैक्टर जो आया है, तमाम तरीके के एम से जो मुद्दे आपने भी जो गिनाए थे, उसमें वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने वोटर को तो कंसोलिडेट कर रहे हैं. लेकिन जो एक मुंडेन पर बैठा हुआ है, जो बाउंड्री वॉल पर बैठा हुआ है, जो एक सॉफ्ट जो स्विंग वोटर्स है, जो इनके पास में आ गया था 2014 और 19 में बड़ी उम्मीदें लेकर, वो इस बार इनके साथ में नहीं है, वो छिटक गया है. अब वो जो छिटक गया है, तो वो केवल अकेला नहीं छिटका है, हो सकता है कि 2 उनके परिवार के 2 लोग हों, उनके 4 दोस्त हों, तो वो भी छिटक रहा है. तो ये जो परसेंटेज की गिरावट है, ये गिरावट मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ कह रही है, लेकिन अभी भी देखना पड़ेगा. हम लोग जैसे संघ की बातें कर रहे हैं कि संघ लोगों को नहीं निकाल पाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लोगों को वोट बूथ तक नहीं पहुंचा पाए.
तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, निश्चित तौर पे हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चला। इस समय एडवांटेजेस पोजीशन में इंडिया गठबंधन है, बिल्कुल है, अपना नैरेटिव उसने बैठा दिया है। तो उसकी, और एक बात वो आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भरपाई ये कहीं नहीं कर पा रहे, जिन प्रदेशों में ये नुकसान की बात हो रही है, अभी हमारे पैनलिस्ट आप लोग भी जो नाम गिना रहे थे, महाराष्ट्र गिना रहे थे, गुजरात गिना रहे थे, राजस्थान गिना रहे थे, सब जगह जो नुकसान हो रहा है, तो उसके नुकसान की भरपाई करने के पास इनका कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा जहां भरपाई कर पाएंगे। एक उड़ीसा में पहले एक उम्मीद जरूर आ रही थी कि उड़ीसा में ये भरपाई कर लेंगे, लेकिन उड़ीसा में जिस तरीके से इन्होंने पटनायक जी के स्वास्थ्य को लेकर उनके ऊपर हमला किया, तो वो हमले से मुझे लग रहा है कि उड़ीसा के थोड़ा सा एक जनता एक अलग तरीके से सोचती है। विधानसभा में तो पटनायक को एज है, और मुझे लग रहा है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा टेक्निकल इश्यू। गर्ग साहब, आपको एक सवाल, ये टेम्पो कितनी असर छोड़ेगा? क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक ही चीज बार बार कही थी कि उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ ऐसे ही मतलब राइट ऑफ गायब कर दिए, माफ कर दिए। और दूसरी बात यह आती है कि किसानों को पर डे आप 17 रुपए दे रहे हो और बाद में इनकम डबल करने की बात कर रहे हो। इन सब के बीच में पीएम ने जो अदानी, अंबानी और टेम्पो का जो जिक्र किया, जिक्र एक ही बार था और डायरेक्टली रिस्पॉन्ड किया राहुल गांधी ने, तो मतलब ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ये इसको लोग कैसे लेंगे? देखिए, वो मुद्दा क्या हुआ कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने एक ही बार कहा, वो आंध्र में कहा और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसको रिपीट भी नहीं किया। तेलंगाना में कहा था प्रधानमंत्री ने, और राहुल गांधी ने उसका जवाब भी दिया, कांग्रेस ने, पर बीजेपी ने उसको आगे खींचा नहीं कि, और ना प्रधानमंत्री ने पहली बार अडानी अंबानी का नाम लिया था और टेम्पो का नाम लिया था। ये जो इन्होंने, भदौरिया जी ने जो बात कही, वो इम्पोर्टेंट बात कही है कि उत्तर प्रदेश के बारे में भी वो लागू होती है और दूसरी जगह के बारे में भी लागू होती है। जो भदौरिया जी का ऑब्जर्वेशन है कि जो फेंस पर बैठे हुए लोग थे 2014 और 2019 में, जो उनको लगा था कि ये मोदी जी ने एक मोदी जी के रूप में एक बड़ा नेता देश को मिला है और कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं थी, विकल्प नहीं था, वो तमाम लोग जो जुड़ गए थे वो सब अब हट गए। और यूपी में क्या हुआ है कि पूरा का पूरा जो दलित वोट बैंक है, जो जाटव वोट बैंक है, जो 2019 में पूरा का पूरा मायावती के साथ गया था, वो इस बार पूरा का पूरा छिटक गया। इसीलिए जो ये आनंद की, जो आकाश की जो बात आ रही है, वो इसीलिए आ रही है कि बीएसपी दो फाड़ हो गई है और बीएसपी का बहुत बड़ा जो वोट है, मुसलमानों का जो वोट, बड़ा वोट है, दलितों का जो है, जाटव का जो है, वो सारा का सारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चला गया। तो सर, जो ट्रेडिशनल वोट्स है कांग्रेस के, जिसकी वजह से मतलब कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल वोट्स पहले रहते थे, जो खिसक गए 2019 में यार अदर असेंबली इलेक्शंस में, क्या उसको समेटने में या फिर उन तक पहुंचने में इंडिया गठबंधन के थ्रू क्या कांग्रेस सफल रही? इतने बड़े सूबे में अगर यूपी, देखिए, वो कांग्रेस सफल नहीं रही, वो ऑटोमेटिकली आ गए। अच्छा, कांग्रेस का तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं यूपी में, वो अपने आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आ गए। मैं आपको बंगाल के बारे में एक बात कहता हूँ, देवत भाई ने एक बंगाल के बारे में बात कही जी। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और भाजपा को फायदा हो सकता है। उसका कारण यह है कि बंगाल में कांग्रेस भी लड़ रही है, लेफ्ट पार्टीज भी लड़ रही है, मुस्लिम सेकुलर फ्रंट भी लड़ रहा है, बीजेपी भी लड़ रही है। वहां पर कई जगह पर 4 कॉर्नर फाइट हो गई है। तो उसमें क्या हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो तृणमूल कांग्रेस के पास जो अभी सीटें हैं बंगाल में, जो 22 सीटें हैं बंगाल में, वो या तो कम होंगी और या फिर उतनी की उतनी रख पाए तो बड़ी बात होगी। पर मुझे नहीं लगता कि बंगाल में भाजपा की सीटें कम होंगी और मुझे यह भी नहीं लगता कि कांग्रेस को और लेफ्ट पार्टीज को वहां कोई बड़ा फायदा होगा। मुझे तो थोड़ा सा ये भी लगता है कि अधीर रंजन की जो सीट है वो निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। जैसा पिछली बार उनको
अपने वेस्ट बंगाल में केवल 2 सीटें मिली थी कांग्रेस को। अगर कांग्रेस 2 सीटें रिटेन कर पाए बंगाल में, सीपीएम को तो कुछ भी नहीं मिला, तो वो बड़ी बात होगी। तो इसलिए मैं बंगाल को इसमें पिक्चर में नहीं ले रहा हूं। देवर भाई ने हालांकि कहा है कि वहां भाजपा को नुकसान हो सकता है, पर मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा मानना है कि बीजेपी को जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो बिहार में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा और महाराष्ट्र में होगा। और साउथ का तो मैंने आपको बताया कि 150 की 150 सीटें हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मेरा जो इसमें आपके लिए कहना है कि मेरा अनुमान ये कि भारतीय जनता पार्टी को 210 और 200 के अंदर सीटें मिलना चाहिए और एनडीए को टोटलिटी में 230 सीटें मिलना चाहिए। पर आप पाएंगे कि ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें 300 से ऊपर सीटें दिखाने वाले हैं। तो इसलिए अब हमको 4 तारीख की तो इंतजार करना ही पड़ेगा कि क्या होगा। ओके जी ओके, इन्हें ब्रेक के बाद यही मुद्दे पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी है उन चीजों पे बात करना, क्योंकि इतनी भीड़ जब जमा होती है तो भीड़ वोटों में तब्दील होती है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ब्रेक માટે રોકાઈશું, કેમ કે જો આંકડાઓ ખુલ્યા નથી, ધીમે ધીમે આંકડાઓ સ્ટેટ વાઇઝ ખુલશે અને હિન્દી બેલ્ટથી લઈને સાઉથથી લઈને 7 સિસ્ટર્સ અને નોર્થમાં જ્યાં સ્ટ્રાઇક રેટ બીજેપીની 100% હતી, એ સ્ટ્રાઇક રેટ મેન્ટેન થાય છે, અથવા તો જ્યાં સીટ ગુમાવવાનું ટેન્શન છે, એ સીટ જે આંકડાઓમાં ગુમાવે છે તેની રિકવરી ક્યાંથી થાય છે? કદાચ એનો જવાબ આજે એક્ઝિટ પોલમાં થોડો ઘણો અંદેશો મળી જશે। આ એક્ઝિટ પોલનો થપ્પો નથી, પણ એક સમજ આપવા માટે, એક પિક્ચર રજૂ કરવા માટે કાફી છે। પિક્ચર કેટલું એ સુપરહિટ સાબિત થાય છે 4 તારીખે ખબર પડશે, પણ પિક્ચર જોવું પણ જરૂરી છે। એવું જરૂરી નથી કે દરેક પિક્ચર સુપર